So this due to deficiency of this carbohydrate, because milk having lots of lactose is there, and lactose is synthesized from glucose. So there is deficiency of glucose. So last class we discussed about this, that the when deficiency of glucose is there, then the body shifted towards the fat. Okay, and fat metabolism, and so the more production of acetyl enzyme and then more production of this ketone bodies is there. So it occurs in the cattle. So this is the mechanism of this occurrence of the bovine ketosis. So excessive of this ketone bodies comes from breakdown of fat, and they utilized by mainly by the brain. Okay. And you know that in case of cattle also that they are the main source of energy for cattle are volatile fatty acids, and these volatile fatty acids are similar to this similar to the ketone bodies. They are similar, okay. But glucose is essential for brain. Brain require glucose only, so they can utilize glucose only. So what happens that due to that the glucose deficiency, ketone bodies formation takes place. And after that, what happens if excess of ketone body blood system is there, then that ketone body comes to urine. So that is called ketonuria, and also in the breath and also in the milk, ketone body is coming. Okay, due to in breath actually ketone body is coming, that indicates some smell is there. Some smell is there due to acetone. Okay, so due to acetone, the in breath some smells are there. Okay, and ketone body is also secreted out in urine, also in milk also. Okay. This ketosis in bovine mainly occurs in first month of the lactation, just after parturition. It's most common that just after parturition, ketosis occurs mainly in high adults, okay, and less frequently occurs in second month. And after that, after second month, rarely occurs. Okay, and the incidence of this ketosis is also related to lactation. But if the annually in the higher fourth or fifth lactation, actually what happens that the when lactation is increasing every time, first lactation less milk yield, second lactation milk yield increases. So due to milk increasing milk yield, the animal is more actually then more prone to this ketosis. Okay, up to 6 actually you can say from 4, 5, 6 they have maximum peak lactation is there. So big milk yield is there. So during that period, they are more prone to this bovine ketosis. The predisposing factor for this actually that the age is the one important predisposing factor. We have already discussed about this, that after fourth lactation, their chances is more up to sixth lactation. Okay. And after that, milk yield will be low, those chances are less. Body condition, if over fattening is at the time of the this calving, if over fat is there, then there is chance of the ketosis is there. Then some secondary ketosis also occurs due to mastitis, retention of placenta, milk fever. अगर ये सब चीजें हुई just after parturition, this mastitis also disease most cases in just after parturition. बहुत parturition के बाद बहुत ज्यादा chances होते हैं कि mastitis होगा. Retention of placenta is most common in वही parturition के just बाद होता है. Milk fever भी just parturition के बाद होता है. So if animal is occurring from this kind of the disease, then there is a chances of that they also develop ketosis. So we find that if you're treating the animal with milk fever, most cases in milk fever cases, what happens, they also develop ketosis. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिल्क फीवर के केसेस में there is deficiency of calcium and animal is unable to stand, so their bleeding condition is there and they are unable to eat actually. खाना भी नहीं खाता है लेकिन milking is there, milk are there. Okay, drop in milk production also, milk fever में milk production drop हो जाता है लेकिन फिर भी not getting any kind of the feed, so that lead to ketosis. So milk fever हमेशा उससे associated होता है ketosis. Retention of placenta, they are also associated with ketosis. Retention of placenta is also related due to deficiency of calcium or some infection in that uterus.
So in that case, animal is under stress and unable to eat something. So there is a development of ketosis. Etiology are the mainly due to negative energy balance. We already discussed about this for long period of time. So whatever actually most of the cases animal is adapted for that. So that the deficiency is there, then we have adapted. So what happens that तो तीन बातें याद रखनी है. One is that कि एनिमल का हो सकता है कि मे बी डिफिशियंसी फीड दे रहे हैं, लेकिन डिफिशियंसी इसलिए हो गई क्योंकि जितनी जरूरत है फीड की उतनी नहीं दे रहे हैं. व्हाट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ फीड इज देयर, इफ मिल्क यील्ड इज 10 kg, सो यू हैव टू गिव अकॉर्डिंग टू दैट. फीड उतना देना पड़ेगा. आपने स्टडी किया होगा एलपीएम में या न्यूट्रिशन में, दैट पर केजी मिल्क पे इतना न्यूट्रिशन कंसंट्रेट ऐड करना, इतना ये ऐड करना है. ओके, तो उतना आपको देना होगा. अगर वहां पे कमी करें तो दैट आल्सो लीड टू कीटोसिस. एक हो सकता है तो कंप्लीट फेड ऑफ मतलब नहीं मिला है, और एक हो सकता है कि आपको फीडिंग नहीं हो पा रही प्रॉपर्ली जितनी उसकी मिल्क यील्ड है. एक वन केस है. दूसरा कैसे हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट ट्राइमेस्टर में, आप जानते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में ऑफ द प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज देयर एंड दैट डेवलपमेंट रिक्वायर मोस्ट न्यूट्रिएंट. सो मैक्सिमम बॉडी का न्यूट्रिएंट उस तरफ चला जाता है. तो जस्ट आफ्टर पार्टनरशिप एनिमल मे बी इन नेगेटिव एनर्जी बैलेंस. ये हो सकता है अगर वो पार्चुरेशन मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ढंग से खाना उसको नहीं मिला तो उसके एसोसिएट करके भी ये हो सकता है. क्योंकि एक बैग अगर मिल्क आ गया, उसके बाद मिल्क यील्ड शुरू होगी, सो लीटर्स ऑफ मिल्क आर देयर, और एनर्जी कहाँ से लाएगा. सो उसको एनर्जी देना पड़ता है. इसीलिए आपको राशन इसीलिए फीड करने पर राशन स्पेसिफिक है कि इतना पर केजी इतना देना है. मेंटेनेंस राशन इज डिफरेंट, लैक्टेशन राशन इज डिफरेंट. ओके, बॉडी मेंटेनेंस के लिए अलग राशन होती है, उसके अलग से लैक्टेशन के लिए अलग राशन होती है. तो इस तरह से दिया जाता है. ओके, so already discussed that in late pregnancy we glucose directed the most of the body from nutrient which development improve development में चला जाता है. so already discussed about that. लैक्टेज स्टार्ट होता है तो ग्लूकोज जो है कि लैक्टोज के लिए जरूरत होती है, और ऐसे स्टडी में पाया गया कि 50 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर ईच लीटर ऑफ द मिल्क which having 4.8% lactose. Like most of the cattle, actually cattle के केस में 4.8% मिल्क में लैक्टोज होता है मोस्टली केसेस में. एवरेज तो 50 ग्राम ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड. ओके, so for that purpose we have to eat we have to give the feed to animal 50 gram glucose per kg. So 10 kg is there, so have to give 500 gram. इतना मिनिमम देना पड़ेगा, और मेंटेनेंस के लिए we have to give अलग से उसको देना पड़ेगा. ओके, तो अगर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज बहुत हाई है एंड द supply is low, then that is lead to hypoglycemia, and hypoglycemia, whenever hypoglycemia is there, that lead to ketosis. जब भी हाइपोग्लाइसेमिया होगा कीटोसिस होगा ही होगा. ओके, लॉन्ग टर्म में, एक दिन की बात नहीं करें, लॉन्ग टर्म. ओके, स्टार्वेशन इज फॉर जो भूख हड़ताल करते हैं ना. ओके, तो अगर वो बहुत दिन तक कर रहे हैं तो आप देखिए क्या कि डॉक्टर उसके यूरिन चेक करते हैं. यूरिन किस लिए चेक करते हैं? और कीटोन बॉडी उसमें है कि नहीं. अगर कीटोन बॉडी डेवलप आ गया यूरिन में, दैट इंडिकेट्स द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट. मतलब बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, कीटोन बॉडी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, दैट डेंजरस टू द बॉडी. ओके, ज्यादा कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. अगर यूरिन में आ रहा है मतलब लेवल इज वेरी हाई. Symptoms are there, two major form of the ketosis are there. One is the fasting form, another is the nervous form. Most common fasting form is most common, and it's developed between actually decline in appetite. मतलब खाना छोड़ देगा 2 से 5 दिन में, और ग्रास और हे खा सकता है, बट नॉट ईटिंग द ग्रेन एंड सैलेज. ग्रेन नहीं खाता. एक कॉमन याद रखिएगा, ये कॉमन सिम्टम होती है. अगर आप जब मेडिसिन में जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, उसको जब कंसंट्रेट दिया जाएगा, कोई भी कंसंट्रेट, ठीक है, तो वो खाएगा नहीं, सैलेज को भी नहीं खाएगा. ग्रास को खा सकता है, हे को खा सकता है, रफेज को खा लेगा वो, बट कंसंट्रेट को नहीं खाएगा. दैट इंडिकेट दैट इज एनिमल इज गोइंग अंडर दिस कीटोसिस. ओके, कीटोसिस का मेन सिम्टम यही है. ओके, स्लगरी एंड अनस्टेडी ऑन हिज लेग, मतलब वो ठीक से अपने लेग पे खड़ा नहीं हो पाता. दैट इज आल्सो सिम्टम ऑफ मिल्क फीवर. आल्सो मिल्क फीवर में भी ये इस तरह की चीजें आती हैं. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट. woody coat appearance. Woody coat appearance मतलब that if animal, in that case what happens that the this fat is due to loss of fat. अगर आप उसको
खींचिएगा पकड़ के, ठीक है। तो उस केस में आप देखिए क्या कि बहुत ही हार्ड टाइप में दिख रहा है, ओडी टाइप में दिख रहा है, जनरली लूज होती है, ओके। और स्वीटी स्मेल जो मैंने बता रहा था आपको, ड्यू टू एसीटोन, एसीटोन स्वीटी स्मेल इज देयर ड्यू टू एसीटोन। मौत से जो रेस्पिरेशन बता ना कीटोन बॉडी जो आती है उसके कारण स्वीटी स्मेल आएगी, ओके। और हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली रिकवरी कर जाए, ठीक है, पर क्योंकि फीड के कारण हो सकती है, और ट्रीटमेंट दीजिएगा तो फास्ट रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। कुछ महीने, एक आध महीने लगेगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी में, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो वेरी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, ओके। ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ट्रीटमेंट आर मेनली दैट वी हैव टू गिव द सम ग्लूकोजेनिक सब्सटेंस ऑफ ग्लूकोज, वी हैव टू गिव द एनर्जी, ओके। सो अगर एनर्जी आप देते हैं तो अपने आप क्या होगा कि ग्लूकोज आने लगेगा तो कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन कम जाएगा एंड देन सबसाइड हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा, ओके। ये एक मेटाबॉलिक टाइप ऑफ डिजीज है। नर्वस फॉर्म इज लेस कॉमन। इनमें आप देखेंगे क्या होता है कि डिफिशियंसी अगर ग्लूकोज के, तो आप समझिए कि ब्रेन इज यूटिलाइजिंग ग्लूकोज फॉर देयर फंक्शन। इफ ब्रेन इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, then the nervous form is occurs, and it is occurs when the this deficiency is for prolonged time, बहुत दिन तक अगर आपने नहीं देखा तो ये कैसे आ जाते हैं नर्वस फॉर्म, ओके। इसमें अपरेंट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब दिखता नहीं, अपरेंट, ओके। और एमलेस वॉन्डरिंग, मतलब इधर उधर कहीं घूमता रहेगा। नर्वाइन फॉर्म में आप देखिए सर्कलिंग मूवमेंट टाइप में आपने स्टडी किया होगा, उस तरह के इधर उधर घूमता रहेगा। स्ट्रेंज मूवमेंट ऑफ द टंग, टंग का जो इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा, उसको लगेगा बार बार कुछ कुछ उसको टेस्ट चाहिए, ऐसा लगेगा जैसे कुछ होता है ना कि हाँ कुछ देना है उसको, बार बार लगेगा अरे खाना खाना है, भूख, क्योंकि अंदर से भूख लगी रहती है लेकिन वो खा नहीं पाता, ओके। तो आपको टंग का मूवमेंट दिखेगा। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन लास्ट फॉर 1 to 2 आवर, एक दो घंटे तक रहेगा। और सन स्टार्ट मोर सडनली देन द वास्टिंग फॉर्म, मतलब ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, वास्टिंग फॉर्म धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ये बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाता है। Types of ketosis, there's Bohan ketosis, okay. So there are two types, primary and secondary. Primary is mainly due to that the deficiency of actually unable to feed, feed की कमी है, properly feeding नहीं हुई, that case due to that primary ketosis develop, okay. और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप फीड दे रहे हैं बट दैट फीड नॉट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, so in that case also this ketosis will develop. So in secondary ketosis, this is associated with the digestion and metabolism, that is the it may occur due to that the alimentary ketosis we discussed last class. Alimentary ketosis, that the defect in absorption of carbohydrate, absorption carbohydrate का properly नहीं हो रहा है, to that the secondary ketosis will develop. और ये भी हो सकता है कि आपको एक और चीज मैंने बताया था, जो फॉल्टी है और साइलेज खाते हैं, in that case also it is developed Bohan ketosis. तो अगर आप एडुकेट खाना दे रहे हैं तो भी अगर हो रहा है, दैट इंडिकेट कि ये सेकेंडरी कीटोसिस है, ओके। देन कम्स टू प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस Bohan ketosis? No? Yes sir. No question. Sir नहीं सर, लैक्टेशन वाला नहीं सर समझ पाए सर। लैक्टेशन actually animally the first lactation, second lactation, third lactation, अब जाती है अभी after calving there is a different lactation is there, okay. So you can say first, second, third, fourth lactation. So when lactation is increasing, then milk yield is increasing. This is normal trend, आप LPM में study किए होंगे, okay. Yes, so sir. when the fourth lactation, when animal are in the fourth lactation, their milk yield is very high, actually peak, at the peak, so they are more prone to this ketosis. Why is more prone to ketosis? Because more milk yield is there, then more lactose required and more glucose is required. So you have to give feed according to that. If you're not giving the feed according to that, then there is chances of development of ketosis, okay. Yes sir, thank you. So we come to this pregnancy toxemia. It's just like ketosis, mechanism is same, but difference is that it occurs just after, before parturition. Ketosis develop after parturition, it occurs just after parturition in last month of this pregnancy, okay. And mainly occurs in sheep and goat.
The two differences are there. One is that the beta buoyant ketosis occurs in after parturition, but pregnancy toxemia occurs in before parturition. Okay, it is also known as kid disease, twin slam disease, lamping paralysis, pregnancy disease. Okay, and mainly occurs in sheep and goat, and it occurs mainly last 2 week of the gestation. मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट 2 से 4 वीक में ही ये मेनली होते हैं, एंड मे आर फैटल, बहुत ज्यादा फैटल होते हैं, मतलब 70% केसेज में डेथ हो जाती है. ओके, मोर्टेलिटी इज वेरी हाई, अगर हो गया तो बचाने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ओके, सो मोर्टेलिटी इज वेरी हाई एंड मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. लास्ट मंथ में लास्ट 2 to 4 वीक करो, मतलब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कॉमन होता है, जबकि बोवेन कीटोसिस दे आर मोस्ट कॉमन इन आफ्टर पार्चुरेशन. ओके, etiology is that the low blood glucose is there. Okay, because you know the fetus require lots of energy. Okay, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में बहुत सारी एनर्जी चाहिए, सो fetus को चाहिए, and that come from animal body, that dam, or you can say sorry don't do this doe. Okay, so from doe जो मतलब फीमेल गोट और शिप कर सकते हैं. ओके, तो फीमेल गोट और शिप के बॉडी से वो ग्लूकोज ड्राइवर के फीटस के पास जा रहा है. सो दैट लो ग्लूकोज लेवल इज देयर इन द एनिमल बॉडी, एंड ड्यू टू दैट दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स फैट. जो कॉमन मैकेनिज्म मैंने बताया, यहाँ भी वही चीज है, दैट देयर मेटाबॉलिज्म शिफ्टिंग टुवर्ड द फैट, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी इज देयर, एंड देन कीटोन बॉडी, इफ एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडी इज देयर, दे आर सेक्रेटेड आउट थ्रू यूरिन. और ये मोस्ट कॉमन शिप गोट में इसलिए हो जाता है क्योंकि दे आर मल्टीपैरस, मतलब जितना ज्यादा फीटस होगा, मल्टीपैरस समझते हैं, एक से ज्यादा फीटस. कैटल में ऐसा नहीं है, कैटल में एक ही फीटस होता है. ओके, तो मल्टीपैरस मतलब एक से ज्यादा फीटस है. आप जानते हैं गोट 5-6 को जब देती है, तो सीप भी 5-6 तक हो सकती है. ओके, तो मल्टीपैरस होने के कारण ज्यादा एनर्जी डिमांड होती है. ओके, अब अगर एक ज्यादा एनर्जी डिमांड हो गई तो आपको क्या होगा कि उसकी जो फीड इनटेक है दैट विल लो. कोल्ड वेदर के केसेज में भी ज्यादा चांसेस होती है. कोल्ड वेदर में इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिवाइडेड टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, सो दैट इन दैट केस कोल्ड वेदर इज देयर. लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर है, स्ट्रेस है, तो भी आपको चांसेस है कि डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेगनेंसी टॉक्सिन. वो डो अगर बहुत थीन है, मतलब जो फीमेल सीप और गोट है, तो उनके पास क्या होगा, वो बहुत पतले हैं, तो स्टोमक में इतना स्पेस नहीं होता. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोमक इज covered by this fetus, so they are unable to eat that much. That is one case if you are too much thin. Also that after that what happens, that अगर ज्यादा नहीं खा पाए तो जो storage fat है that will break down. If too thick, sorry यहाँ thick होगा, दोनों जगह thick लिखा है. Okay, so here thick is there. Okay, so अगर ज्यादा thick है, मतलब बहुत हैवी है, तो देन व्हाट हैपेंस दैट उसके बॉडी मेंटेनेंस में ज्यादा राशन लग जाएगा. ओके, बिकॉज़ दे आर नो दे आर मीट पर्पस, उसके बॉडी डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है. ओके, सो दैट रिक्वायर एनर्जी फॉर दैट पर्पस. lack of exercise, sir. यस, एक्सरसाइज. Lack of exercise. Lack of exercise actually any pregnant animal are there ना, they require exercise. Okay, एक्सरसाइज अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा, अगर एक्सरसाइज में तो एनर्जी जाएगा ना सर. नो एक्सरसाइज में जाएगा एनर्जी, बट क्या है ना कि उससे फीड इनटेक बढ़ती है. इनटेक इज मोर इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, देन योर फीड इनटेक विल बी मोर. ओके, बॉडी जो है उस कंडीशन के लिए तैयार रहता है. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी इसके कंडीशन के लिए तैयार रहता है, प्रिपेयरिंग फॉर दैट. ओके, इसलिए एक्सरसाइज एसेंशियल. हर चीज में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, हर चीज में. और कोई पर्सन को कुछ तरह की बीमारी, तो एक्सरसाइज सबसे कॉमन, बॉडी को उससे किसी कंडीशन से लड़ने की क्षमता देता है. ठीक सर, तो एक कल पॉइंट था पोस्ट एक्सरसाइज कीटोसिस, मींस ड्यू टू एक्सरसाइज आल्सो कीटोसिस टेक्स प्लेस. हाँ, पोस्ट एक्सरसाइज कीटोसिस मतलब आप नहीं समझे. एक क्या हुआ कि ओवर एक्सरसाइज कर लिया है ना, एक ओवर किया और एक किया ही नहीं. आपको करना है लेकिन एक लिमिट तक करना है. ठीक, ओवर करने पे भी दिक्कत है, नहीं करने पे दिक्कत है, बट नहीं करने पे इस प्रेगनेंसी में कैसे जो एक्सरसाइज करने को कहा जाता है, क्योंकि जो फिटस की डेवलपमेंट होती है, ब्लड फ्लो होती है, सारी चीजें बहुत फास्ट होती है. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो फास्ट होगी. ओके, जब ब्लड फ्लो फास्ट होगी तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट बहुत तेजी से जाएंगे, तो आपको भूख लगेगी. ओके, फीड इंटेक बढ़ता है उससे एक्सरसाइज करने से.
एवरीवन, अगर आप कोई बैठा रहे तो बेड पे, तो आप देखिएगा क्या होगा, वो नहीं खाना खाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रही है, जो इंटेक हो लिया वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो कहाँ से खाएगा, है ना, क्योंकि आप यू आर यूजिंग, आप सोचिए कि फीड में बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लिया, मे भी हो सकता है कि दूसरी चीजों को यूटिलाइजेशन भी तो चाहिए, प्रोटीन उसमें है, सब चीजें हैं, सारी चीजें सबको यूटिलाइज करने के लिए तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे क्या होगा कि दूसरी चीज यूटिलाइज होगी, तो ओवरऑल आप जितनी फीड इंटेक ले रहे हो सारी चीजों को यूटिलाइज करना जाएगा, नहीं तो एक चीज पूरा यूटिलाइज होगा और दूसरी चीजें आपको डिप्लीट हो गई, मतलब वो सॉरी दूसरी चीजें एक्सेस आ रही है, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट वी डिस्कसिंग दैट अगर ज्यादा थिक है तो क्या होगा कि उसको मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, बॉडी मेंटेनेंस उसको उसके लिए ज्यादा खाना पड़ता है, तो वो फिटनेस के लिए ज्यादा नहीं कर पाता है, तो दैट केस आल्सो अगर आप उसको सफिशिएंट नहीं देते हैं, ठीक है तो उसको ज्यादा खाना देना है, बहुत ज्यादा देना है, तो उसको बॉडी मेंटेनेंस का भी करना है और फिटनेस का मेंटेनेंस का करना है, दो काम है उसको, सो इन दैट केस आल्सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस। सिम्टम्स क्या हैं, दे एनिमल्स आर आइसोलेटिंग देमसेल्फ, एनोरेक्सिया मींस दैट लैक ऑफ फीड, मतलब खाना नहीं खाएगा, वीकनेस, बहुत ही डिप्रेशन में रहेगा, मे अपीयर ब्लाइंड, जो केसेस में बता रहा था उसके नॉन फॉर्म के न्यूरोलॉजिकल साइन आएंगे, के अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो न्यूरोलॉजिकल साइन आएंगे, सर्कलिंग मूवमेंट, टीथ ग्रेडिंग, ये सब कोमा, ये सब सारी चीजें न्यूरोलॉजिकल साइन है, और ये आपको 12 घंटे तक 12 घंटे से लेकर 10 दिन तक रहेगा, उसके बाद अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो एनिमल लॉस, मतलब डाई कर जाएगा वो, ठीक। और डेथ ऑफ द फीटस है मोस्ट कॉमन, इसमें क्या होता है कि अगर आप ज्यादा नहीं पी पा रहे हैं फीटस को, तो वहाँ पे चांसेस इधर, अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो फीटस एक आध डेथ कर सकता है, सिर्फ 5-6 फीटस हैं, तो अगर एक को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए तो क्या होगा, एक फीटस डेथ करेगा, तो उसमें क्या होता है उसके बाद कि रिलीज ऑफ टॉक्सिन शुरू हो जाती है, टॉक्सिन शुरू हो जाती है तो उसके बाद और ज्यादा दिक्कत आती है, जो कभी कभी क्या होता है कि एक मरा हुआ निकलता है लेकिन बाकी सब स्वस्थ रहता है। हाँ, तो वही बता रहा हूँ आपको, समय पे लिया है ना, स्टार्टेड, अगर आपने जस्ट कीटोसिस डेवलपमेंट उसी समय आप ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने छोड़ दिया तो सारे मर जाएंगे, एनिमल भी नहीं बचेगा, ठीक है, तो इसलिए ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम में देना चाहिए, मोर्टेलिटी बढ़िया है, 80% है, ओके, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होता है, सारे के सारे जो है ना आपको जीवित मिल जाए, डॉग के केस में भी होती है, ऐसा नहीं है, जो मल्टीपैरेंट एनिमल हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको मिलेगी, डॉग में सब कीटोसिस वगैरह डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसकी फीडिंग आप सफिशिएंट देते हैं, डॉग अलग चीज है, उसकी देखभाल अलग होती है, सिप कोट की देखभाल अलग होती है, आप उसको उतना केयर नहीं करते जितना डॉग को कर सकते हैं। So difference between bovine ketosis and this ovine ketosis. Bovine ketosis is the bovine ketosis, and then ovine ketosis is the pregnancy toxin. Okay. So bovine ketosis is self limiting, मतलब आप उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि खाना उसको मिलने लगेगा तो ठीक हो जाएगा, बट दिस ovine ketosis is fatal, मतलब बहुत ज्यादा जो है कि चांसेस है कि मोर्टेलिटी हो जाए, चांसेस मोर, पोस्ट पार्चुरेंट है, मतलब पार्चुरेशन के बाद वन कीटोसिस है, एंड प्री पार्चुरेंट मतलब वहाँ जो प्रेगनेंसी टॉक्सिन है दैट टेक्स प्लेस आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर पार्चुरेशन, एंड ये आपको जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन के बाद फर्स्ट मंथ में होता है, और ये क्या होता है लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है मोस्टली, ठीक। इसमें क्या है कि ग्लूकोज चाहिए, मैकेनिज्म में ग्लूकोज नीडेड फॉर मिल्क, और इसमें चाहिए ग्लूकोज नीडेड फॉर फिटस, इस कारण से ये होता है। सो दियर डिफरेंस बिटवीन bovine ketosis एंड प्रेगनेंसी टॉक्सिन में ये आएगा क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, और आपको बहुत सारे मतलब बहुत चेंजेज आती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, तो दैट लीड टू दिस काइंड ऑफ डिजीज, ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ओके। देन ब्लड बायोकेमिस्ट्री, इसको अगर आपको नहीं मालूम, सिम्टम्स अगर नहीं पता चल रहा है, सम सिम्टम्स आर देयर, देन यू गो फॉर द ब्लड बायोकेमिस्ट्री, यूरिन में आप सब देख सकते हैं कीटोन बॉडीज, मिल्क में देख सकते हैं, और ब्लड में आप टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन एंड मिल्क में हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट ब्लड में करते हैं, तो अब क्या पाइएगा, फ्री फैटी एसिड, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि मोर फैट मेटाबोलाइज हो रहे हैं, लो ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसेमिया इज देयर, ओके, देन द इंक्रीज इन ब्लड कीटोन बॉडीज ब्लड में बढ़ जाती है, क्योंकि कीटोन बॉडी की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, मिल्क में आपको कीटोन बॉडी मिलेंगे, ये आपको जो दिया हुआ है ना दैट इज मैक्सिमम लिमिट,
ये आपको इससे होना चाहिए, इससे ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं। ओके, वोलेटाइल फैटी एसिड ब्लड में बहुत मिलेंगे, यूरिन में आपको मिलेंगे। सब नॉर्मल केसेस में कितने मिलते हैं, सब क्लिनिकल केसेस 20 ग्राम, क्लिनिकल केसेस में 80 टू 1300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। बुटारेट इंड्यूस सर हाँ जब ये कीटोन बॉडीज मिल्क में रहेगा तो वो हम लोग कंज्यूम करेंगे तो एज इट इज वो हम लोग के भी शरीर में चला जाएगा। देखिए जैसे कि आप कितना कंज्यूम करने वाले हैं, हाफ लीटर, 1 आधा लीटर, किलो। हाँ हाँ तो उससे यस उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आपका बॉडी उसके हिसाब से ना, आपका 50-60 किलो का आपका बॉडी है, तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेस होगा तो दिक्कत आएगी। अदरवाइज मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब कीटोसिस डेवलपमेंट होती है ना, तो एनिमल मिल्किंग ड्रॉप हो जाता है, हो सकता है मिल्किंग करे ही नहीं, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो मिल्किंग कहाँ से करेगा। तो आपको वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मतलब कि आप उस तरह का मिल्क पी लें, ठीक है, स्लाइटली बहुत कम मिल्किंग होती है। ओके, लेकिन अगर आपने इनटेक कर भी लिया उसे मिल्क तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। वी कैन मेटाबोलाइज दैट कीटोन बॉडीज। सर ये 50-10-3 क्या है सर? हाँ ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज लिमिट, ठीक है। 10 एक नॉर्मली है, लेकिन अगर ये चला गया 10 से 1000 के बीच है, 10 इज द लिमिट। ओके, इस केस में 50 नहीं, यहाँ 20 होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया, ठीक है 10। ओके, और यहाँ पे 3 दिया हुआ, मतलब 3 से अबव अगर चला गया आपको 40 तक चला जाता है मिल्क कीटोसिस में, मिल्क में 40 तक, 3 से लेके 40 तक चला जाता है, 40 तक चला जाता है। ओके, ये बताने ये सिर्फ आपको बताने के लिए, वो याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कितना हो जाता है, कितना सिवियरिटी कितनी होती है। ओके, then lastly you can say other cause, both for both ketosis and pregnancy toxin, the other cause apart from this। okay, प्राइमरी आपने देखा कि स्टार्वेशन के कारण हो रहा है, अंडरफीड के कारण हो रहा है, फीड की क्वालिटी कैसी है, उसमें प्रॉपर्ली कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, ये सब चीजों को आपने देखा। सेकेंडरी अंडरफीड में क्या देख रहे हैं कि कुछ और कारण से, दैट इज अनदर डिजीज, जैसे मैंने बताया था आपको रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा मास्टाइटिस, उसके कारण हो रहा है, तो सेकेंडरी अंडरफीड कीटोसिस हो जाएगी, है ना। प्राइमरी क्या हो रहा है कि पुअर क्वालिटी ऑफ फीड और फीड इंटेक लो है, मतलब दिया नहीं जा रहा है, बेचारा खा सकता है एनिमल लेकिन उसको दिया नहीं जा रहा है। ओके, दूसरा उसकी जो फीड की क्वालिटी है वो पुअर, उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सो दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी जिसमें आपको फीड तो प्रॉपरली नहीं खा पा रहा है क्योंकि सर्टेन डिजीज आ रही है। एलिमेंट्री केसेज एक मैंने बताया आपको कि फीड तो अच्छी क्वालिटी के है लेकिन अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, और ये मे बी कि फीड कंटेनिंग कीटोजेनिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल फॉल्टी साइलेज, अगर फॉल्टी साइलेज आप दे रहे हैं तो देन कीटोन बॉडी ऑलरेडी उसमें होता है, ठीक है। सो दो केसेज हो गए एलिमेंट्री कीटोसिस के। देन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हो सकता है, जैसे आपको कोबाल्ट और फास्फोरस डिफिशियंसी केसेस में भी हो सकती है। कोबाल्ट की डिफिशियंसी में क्यों होगा, बिकॉज कोबाल्ट इज फॉर विटामिन B12, नो, एनिमल जो होते हैं ना, कोबाल्ट जो है सप्लीमेंट दिया जाता है कैटल्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि B12 इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, और बैक्टीरिया उसमें चाहिए, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है अगर ह्यूमन में, तो रिक्वायर्ड विटामिन B12 और विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट चाहिए। अगर कोबाल्ट की डिफिशियंसी होती है तो बैक्टीरिया जो है प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो वो फर्मेंटेशन होती है, आप जानते हैं ह्यूमन में, तो प्रॉपर्ली अगर नहीं कर पाएगा तो इन दैट केस आल्सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस। स्पॉन्टेनियस कीटोसिस इसका कोई पता नहीं, इसका कोई कॉज पता नहीं, दैट इज कॉल्ड दिस स्पॉन्टेनियस कीटोसिस। बहुत सारे ऐसे कारण है जो भी मालूम ही नहीं, सिम्टम आ रहे हैं, क्या कारण है नहीं मालूम हुआ, दैट इज स्पॉन्टेनियस कीटोसिस। ओके, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Predisposing factors are there now. Predisposing factors are there. Okay, the factors are that the age is the factor, lactation is the factor. Okay. Yes, sir. In that there is one line like from the PPT. Incidence risk of ketosis increases with parity. Yes, sir. Before that. Okay, this, yeah, Yes, this parity is at the last line. 4th to 5th 6th lactation. जैसे जैसे आपका लैक्टेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसिडेंस ऑफ द कीटोसिस इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मिल्क बढ़ता चला जाएगा।
up to what does that parity means? parity means that वो increase करना, मतलब chances इधर with parity until the parity जैसे बढ़ता जाता है ना उसकी करते हैं। Yes, sir. Okay. Yes, sir. और कुछ? No. We Or have some sir, time. like that's a difference between primary ketosis and secondary ketosis is just this one only now. In one we give just inadequate supply, and second one is even if supply is there, absorption is not there. That's Absorption is not there. secondary. Secondary ketosis. That's all. That's all, sir. No, another thing is that the deficiency secondary ketosis maybe that the this disease cases also that also occurs in secondary because main cause is not there. अगर एनिमल को कुछ बीमारी है in that case वो खाना नहीं खा पा रहे तो that is secondary ketosis. Primary ketosis is mainly that the milk yield ज्यादा है उसको आप उससे sufficient नहीं दे रहे डाइट, that is a primary ketosis. Okay, secondary अब उसको खाना ही नहीं खा पा रहा properly तो वो तो हो गया ना secondary, ठीक है, और absorption नहीं हो पा रहा है तो both cases are secondary ketosis. Okay, sir. Thank you. Any other question? No, then we can stop. Okay, please send the attendance. Okay, Sir, So PPT. just a minute, I will take PPT it. is already there. Same PPT is there. No change. Okay. Okay, you can download from website. Change is there, then I will upload new form. Okay, no problem. Okay.